Hello dear students, how are you? And as you know that term 1 is approaching and we have been revising chapter 12 and 13. When I was checking the homework assignments assigned to you and the class test performed by you, I have noticed few common mistakes which students generally do, and being not an exception, you are also doing such mistakes again and again. So my this video lecture is intending for those particular points which you must take care when you are attempting your questions for chapter current electricity and magnetic effects of current. So let us start. We will also discuss few points which we have not discussed yet in regular syllabus, which are of one step higher complexity, like current dividing when it is given between two resistances. Then you can remember that formula. So I will start from the beginning. The first thing, Ohm's law, you all know that, of potential difference across a conductor is directly proportional to the current flowing in the conductor. V is directly proportional to I, and V is equal to IR, where R is known as constant of proportionality and resistance. Unit is ohm. That is fine with most of the students. The second concept is of resistivity. The first thing is about definition of resistivity. So R is equal to rho L over A. That is the formula for resistivity. So if I'll put my length is equal to 1 meter and area is equal to 1 meter square, my resistance will become equal to resistivity. Under condition length is 1 meter and area is 1 meter square. So resistivity is defined as resistance of a conductor whose length is 1 meter and area of cross section is 1 meter square. It is defined as numerical value becomes equal, and resistivity of a conductor is independent of the length or area. Resistivity is depending on the nature of material. It is not depending on the length and area. Then most common numericals which we come across the resistivity formula, they are like if length is stretched to double. If length is stretched to double is given, what many students are doing, they are doing it like R is equal to rho. In place of L they will put L dash, that is 2L, and divide by A, and they calculate the answer 2R, which is wrong, because they forgot to have corresponding change in area. If length is becoming double, you are squeezing a conductor to double of its length, then area must also decrease to half. अगर आप किसी इलास्टिक को, रबड़ को, मटेरियल को खींचेंगे लेंथ बढ़ाने के लिए, तो उसकी थिकनेस कम हो जाएगी, उसका एरिया हाफ हो जाएगा. अगर लेंथ डबल हुई है तो एरिया हाफ हो जाएगा. यानी कि आप लिखेंगे आर dash is equal to rho. In place of L dash you will write 2L, but in place of area you will write A by 2, and this divide by 2 will come in multiplication and you will get 4 rho L over A, where rho L over A is the original resistance. So R dash will become 4 times the original resistance when you stretch it. Similarly, if a conductor is given, you are not stretching it or you are not compressing it, you are just dividing it into equal parts. Say 4 equal parts में आपने इसको divide किया, तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर इसका resistance 4 R ओम है, तो each part का resistance R by 4, R by 4, R by 4 और R by 4 हो जाएगा. तो ऐसे क्वेश्चंस में एक तो आपका पहले ही इंडिविजुअल रेजिस्टेंस R by 4 हो गया, और उसके बाद अगर वो स्टेटमेंट में बोलता है कि इन इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, तो आप इंडिविजुअल वैल्यूज का ध्यान रखें. अगर इन्हें पैरेलल में कनेक्ट किया गया तो आपको पता है 1 by R is equal to 1 by R1 1 by R2. तो जब आप इसके लिए 1 by R करेंगे तो ये आपका 4 by R बन जाएगा, प्लस 4 by R प्लस 4 by R प्लस 4 by R, और इन सब का एलसीएम R आएगा, और जब आप इसको ऐड करेंगे ऊपर 16 आ जाएगा 1 by RP, तो आपके पास RP की वैल्यू आ जाएगी R by 16, यानी कि ओरिजिनल रेजिस्टेंस का 1/16. ठीक, क्योंकि इंडिविजुअल रेजिस्टेंस R by 4 हो गया. और ऐसा ही एक क्वेश्चन और मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा रेसिस्टिविटी के बाद, जो हीट प्रोड्यूस वाला क्वेश्चन है हमारा. अगर आपसे हीट प्रोड्यूस का रेशो पूछा गया है, फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास दो रेजिस्टेंस हैं R1 and R2 and they are connected to a voltage supply V. Okay,
और इसमें आपका जो करंट है वो आई फ्लो हो रहा है, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इनमें हीट प्रोड्यूस हो रही है H1, लेट अस से इन दिस केस हीट प्रोड्यूसेस H1 जब हमने इनको सीरीज में जोड़ा, और वी कैन राइट HS इन सीरीज। अब दूसरा, आप इन कंडक्टर्स इन रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट कर देते हैं पैरेलल में, और पैरेलल में कनेक्ट करके ये आपके पास R1 है और ये आपके पास R2 है, तो हीट प्रोड्यूस हो रही है पैरेलल में लेट अस से HP। तो आपसे रेशो पूछ लिया जाता है HS और HP का, तो हीट कहाँ ज्यादा प्रोड्यूस होगी? हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी पैरेलल कनेक्शन में। कैसे ज्यादा प्रोड्यूस होगी पैरेलल कनेक्शन में हीट? R1 R2 में जो रेजिस्टेंस है वो क्या बनेगा आपका, सीरीज में है, तो R1 प्लस R2 बनेगा। वोल्टेज हमारी V है, हम फार्मूला लगाएंगे हीट प्रोड्यूस के लिए V स्क्वायर बाय R, दैट इज R1 प्लस R2 इंटू T। और ऐसे ही इधर हम हीट प्रोड्यूस के लिए फार्मूला लगाएंगे, वोल्टेज तो अभी भी सेम है हमारी, और हमारी पैरेलल वैल्यू रेजिस्टेंस की कितनी बन जाएगी, 1/Rp इज इक्वल टू, यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको, 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/Rp आपके पास कितना आ जाएगा, वो आपके पास आ जाएगा R1 प्लस R2 डिवाइड बाई R1 R2, या फिर Rp की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। तो हीट प्रोड्यूस जब आप निकालेंगे तो आप V स्क्वायर बाय Rp की वैल्यू लिखेंगे, तो डिवाइड में जब आप Rp करेंगे तो ये रेशो आपका रिवर्स हो जाएगा, और इनटू में T। तो ये आपके पास हीट प्रोड्यूस आ गई पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, और ये हीट प्रोड्यूस आपके पास आ गई सीरीज कनेक्शन के लिए। अब बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में क्या होता है कि आपको R1 और R2 की वैल्यू सेम दे रखी होती है। अगर R1 और R2 की वैल्यू आपको सेम दे रखी है और आपसे हीट प्रोड्यूस का रेशो पूछा है, तो ये क्वेश्चन आपका और भी सिंपलीफाई हो जाएगा। आप इस वाले फार्मूले में जब R1 प्लस R2 को सेम रखेंगे तो आपके पास आ जाएगा V स्क्वायर बाय 2RT, ये आपके पास हीट प्रोड्यूस इन सीरीज आ जाएगी। और अगर यही कंडीशन हम यहाँ पे पुट करेंगे पैरेलल में, तो पैरेलल में आपके पास R1 प्लस R2 की वैल्यू 2R हो जाएगी, डिवाइड में आपके पास R स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि R1 R2 हमने इक्वल ले लिया, इंटू T, एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, V स्क्वायर T बाय R। और जब अब आप रेशो लेंगे HS टू HP का हीट प्रोड्यूस टू सीरीज और पैरेलल, तो V स्क्वायर बाय 2R को आप डिवाइड करेंगे V स्क्वायर T बाय R से, V स्क्वायर T से V स्क्वायर T कैंसिल, R से R कैंसिल, एंड यू विल गेट दिस रेशो 1:2। बाय 2R डिवाइड, नहीं वेट अ सेकंड, अभी हमारे पास HS का फार्मूला लिखेंगे V स्क्वायर T बाय 2R, और आप HP का फार्मूला लिखेंगे, ये हमारे पास 2 भी बचा हुआ है ना, यहाँ पे 2 इज ऑल्सो देयर इन मल्टीप्लिकेशन, 2 V स्क्वायर T 2 बाय R, तो आप डिवाइड करेंगे V स्क्वायर 2T और डिवाइड बाय आपका R जो है वो ऊपर जाएगा, यस। तो इसमें आपका V स्क्वायर T से V स्क्वायर T कैंसिल, R से R कैंसिल, यू विल गेट 1:4, सो दैट इज द आंसर। तो आप ये देख रहे हो कि जब हमारी R की वैल्यूज इक्वल होती हैं तो हमारा जो रेशो है हीट प्रोड्यूस का, उस सीरीज में हीट प्रोड्यूस कम होती है और पैरेलल में हीट प्रोड्यूस ज्यादा होती है, तो 1:4 आपके पास आया अगर आपके रेजिस्टेंस इक्वल हो जाते हैं। अदरवाइज आपको ये वाला फार्मूला यूज करना पड़ेगा सीरीज के लिए, V स्क्वायर बाय R1 प्लस R2 इंटू T, और आपको ये वाला फार्मूला यूज करना पड़ेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हीट प्रोड्यूस का। और न्यूमेरिकल वैल्यूज भी अगर आपको सपोज 2 और 4 ओम गिवन है तो आप इनके अंदर वो वैल्यूज पुट करके और ये रेशो निकाल सकते हैं। तो ये हीट प्रोड्यूस वाला रेशो वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत कॉमन है, और रेसिस्टिविटी के फार्मूले के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो बहुत कॉमन है। आपको स्ट्रेच करने पे लेंथ डबल करेंगे इसी तरीके से अगर हम किसी कंडक्टर की, तो वो हमारे पास 1/4 टाइम्स उसका हमारे पास रेजिस्टेंस बच जाएगा। इसके बाद आई विल मूव ऑन टू द मैग्नेटिज्म पॉइंट, चैप्टर 13, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के अंदर सबसे पहले जो आपको आना चाहिए वो आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रेट कंडक्टर की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कोसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होती है, कोसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में जब कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा है। और अगर किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो नहीं हो रहा, उस टाइम पे अगर कोई आपसे मैग्नेटिक फील्ड पूछेगी क्या होगी, तो अर्थ के ऊपर हम सरफेस पे हमें पता है कि अर्थ इज आल्सो अ ह्यूज मैग्नेट, और अर्थ का जो हमारा
जियोग्राफिक नॉर्थ पोल है वो साउथ पोल की तरह बिहेव करता है, और जो अर्थ का हमारा साउथ पोल है वो हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ की तरह बिहेव करता है। तो अर्थ के साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो मूव करती है, क्योंकि जो अर्थ का साउथ है वो मैग्नेटिक नॉर्थ है। तो अगर आप अर्थ पे किसी भी पॉइंट पे हैं, जैसे अभी हम यहाँ पे अगर अपनी शीट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करें तो हमारे को पैरेलल लाइन मिलेंगी, क्योंकि फॉर सच स्मॉल एरिया जो कर्वेचर ऑफ अर्थ है वो नेग्लिजिबल हो जाएगा, और जो फील्ड है अर्थ की वो हमारी यूनिफॉर्म है। किसी भी एक एरिया पॉइंट पे अगर आप अर्थ की फील्ड कैलकुलेट करेंगे अदर देन द पोल्स, तो वो हमारी जो फील्ड है वो सरफेस के हॉरिजॉन्टल है और वो यूनिफॉर्म है, पर्टिकुलरली इक्वेटर के ऊपर एग्जैक्ट पैरेलल होगी। और अदरवाइज किसी भी पॉइंट पे आप कैलकुलेट करेंगे अर्थ इज सो ह्यूज कि आपकी जो फील्ड है अर्थ की वो यूनिफॉर्म बिहेव करती है हमेशा, तो पैरेलल लाइंस हम फील्ड की रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम किसी मैग्नेट से अर्थ की फील्ड को न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं तो वैसी बात है हमारी उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से रिवर्स होनी चाहिए। जब वो रिवर्स होएगी तो कोई पॉइंट में जरूर ऐसा मिलेगा जहाँ पे अर्थ की फील्ड उसकी फील्ड से बैलेंस हो जाएगी। तो डायरेक्शन हमें पता होनी चाहिए अर्थ की फील्ड की कहाँ से कहाँ है। अगर आप ग्राफ बनाते हैं ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है, तो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमेशा आपको साउथ से नॉर्थ की तरफ मिलेगी, अगर अर्थ की फील्ड के बारे में कोई क्वेश्चन पूछा जाए। अदरवाइज स्ट्रेट कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड आप राइट हैंड थंब रूल से कैलकुलेट कर सकते हो, और यही राइट हैंड थंब रूल लगा के हम सर्कुलर लूप की मैग्नेटिक फील्ड भी कैलकुलेट करते हैं, जो कि हमारे को मैंने आपको पहले भी बताया कि क्लॉकवाइज के लिए वो हमारे को साउथ पोल आप रिमेंबर रख सकते हैं इसको ऐसे, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए वो आपको नॉर्थ पोल मिलता है करंट कैरिंग लूप का। ये भी आपकी जो फील्ड की डायरेक्शन है वो राइट हैंड थंब रूल से ही है। देखो राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो यहाँ से बाहर आ रही है, जहाँ से फील्ड बाहर आ रही है वो नॉर्थ पोल बनेगा, और जहाँ एंटर कर रही है वो साउथ पोल बनेगा। इसके बाद जो एक कॉमन मिस्टेक मैंने बच्चों की ऑब्जर्व की वो मैंने ऑब्जर्व की कि जब वो बच्चे बार मैग्नेट या सोलिनोइड की पर्टिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करते हैं, एक सोलिनोइड की मैग्नेटिक फील्ड और एक बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सेम होती है। जैसे अगर इस सोलिनोइड की जगह अगर मैं बार मैग्नेट भी बना दूं तो यहाँ से यहाँ जो भी मैं फील्ड ड्रॉ करूंगा वो मेरी सेम होगी। तो कुछ पॉइंट्स आपको बहुत क्लियर होने चाहिए मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। जैसे सपोज यहाँ से करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, सपोज ये नॉर्थ पोल बन रहा है और ये साउथ पोल बन रहा है। यहाँ से अगर हम देखें कि हमारे करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, और यहाँ पे अगर हम देखें और करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, तो ये नॉर्थ पोल बनेगा और ये साउथ पोल बनेगा। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि इंटीरियर ऑफ सोलिनॉइड के अंदर आप फील्ड बनाओ जो फील्ड आपकी यूनिफॉर्म बनेगी। आप हमेशा ना ओड नंबर ऑफ लाइंस बनाओ, जैसे मान लो मैं अभी यहाँ पे 7 लाइंस बना देता हूँ, तो 1 2 3 4 5 6 7, बस ओड लाइनों में से एक जो सेंटर वाली लाइन है उसे तो आप सीधा यहाँ बाहर निकाल दो, उसको आप कर्व मत दिखाओ, और यहाँ से सीधा एंट्री। और उसके बाद आप ये देखो कि आपका इसका जो गोला बनेगा वो सबसे बड़ा बनेगा। अगर आपने इसको ऐसे कर्व दिखाना है जो आपका गिवन स्पेस से बाहर जा रहा है, यू जस्ट लीव इट लाइक दिस, उसको आपको कंप्लीट क्लोज दिखाने की जरूरत नहीं है। फिर ये वाली फील्ड जैसे आपने इसका एक जो सर्कल है वो कंप्लीट कर दिया, जिस लाइन से स्टार्ट किया था उसी लाइन पे कंप्लीट, और ऐसे ही फिर आपने इसका एक सर्कल कंप्लीट कर दिया जहां से स्टार्ट किया जिस लाइन पे उसी लाइन पे एंड। तो आप इस तरीके से देखोगे कि आपका इंटरसेक्शन जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। सेम मैनर में जैसे आपने इसको ऐसे बाहर लीव इट एंड देन यू लीव इट ओपन एंडेड, फिर आपने इसको क्लोज किया यहाँ पे और आपने फिर इसको क्लोज किया यहाँ पे। तो इस तरीके से जब आप फील्ड डायग्राम बनाओगे तो आप देखोगे कि नो टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, एंड दैट इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आल्सो, दैट नो टू लाइंस आर क्रॉसिंग ईच अदर। बच्चे मिस्टेक कैसे कर रहे हैं इसके अंदर, आप जब ये अपनी कॉइल बना के यहाँ पे और मैग्नेटिक फील्ड बनाते हो आप क्या करते हो, आप यहाँ से ऐसे 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 फील्ड दिखा देते हो, यहाँ गोला दिखाया हुआ है, यहाँ गोला दिखाया हुआ है। आउटसाइड द कॉइल आप कैसे एक लूप दिखा सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड का। तो ये मैंने बहुत सारे बच्चों की होमवर्क असाइनमेंट अभी आप देखना, उसमें मैंने इसको गलत भी किया है आपका। तो ये गोला जो बाहर दिखाना है ये गलत है, और इंटरसेक्शन ऐसे दिखाना है कि फील्ड एंटर कर रही है, लाइन यहीं पे मिल रही है, इंटरसेक्शन हो रहा है। तो मुझे पता है इंटरनेट पे बहुत सारी इमेजेस अवेलेबल है, दे नो द ऑल इमेजेस आर नॉट करेक्ट बिकॉज यू मस्ट टेक केयर ऑफ दिस पॉइंट that no two magnetic lines of force will intersect with each other। आप कम नंबर ऑफ लाइंस दिखाओ, आप 7 लाइंस दिखा दो,
आप 5 लाइंस दिखा दो और दिखा दो, आप बहुत सारी लाइनें मत दिखाओ। और यही अगर आप इस एरिया को रिप्लेस कर दूंगा मैं इतने एरिया को अंदर वाले को ऐसे एक रेक्टेंगल बना के बार मैग्नेट से, तो ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है बार मैग्नेट की हो जाएंगी। तो आई होप आप इसमें गलती नहीं करेंगे। एक लास्ट पॉइंट मैं और आपको बताना चाहूंगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल और राइट हैंड थंब रूल में क्या डिफरेंस है, बच्चे हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल आपने देखा ये वही था जो हमने अभी अप्लाई किया स्ट्रेट कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए, ये फ्लेमिंग राइट हैंड रूल था। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए होता है, इसका करंट से फोर्स से कोई लेना देना नहीं है हमारा। सिंपल ये है कि करंट कैरिंग कंडक्टर है तो थंब करंट की डायरेक्शन में, तो जो हमारे को फिंगर ऑफ कर्वेचर है वो मैग्नेटिक फील्ड देती है। वी हैव नथिंग टू डू विद फोर्स इन राइट हैंड थंब रूल। जबकि जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में अगर आपकी इंडेक्स फिंगर फील्ड रिप्रेजेंट करती है और थंब जो है और जो सेकंड फिंगर है वो आपकी करंट रिप्रेजेंट करती है, तो थंब से आप फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करते हो। तो फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए जब हमें फील्ड की डायरेक्शन पता है और जब हमें करंट की डायरेक्शन पता है, तो हम कौन सा रूल यूज करते हैं, तो हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं। और सिमिलरली राइट हैंड रूल हम कब यूज करते हैं, जब हमारे को फील्ड की डायरेक्शन पता है, हमें फोर्स या मोशन की डायरेक्शन पता है और हम करंट की डायरेक्शन फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो करंट की डायरेक्शन फाइंड आउट करना चाहते हैं हम, यानी कि जब हम करंट की डायरेक्शन फाइंड आउट करना चाहते हैं, इंड्यूस करंट की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में इंड्यूस करंट की डायरेक्शन जब हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, हमारे को फील्ड की डायरेक्शन गिवन है और हमें फोर्स या जिसको हम मोशन भी बोल सकते हैं, मोशन की हमें डायरेक्शन पता है किस तरफ कंडक्टर मूव हो रहा है, तो हम कौन सा रूल यूज करते हैं, तो हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज करते हैं। तो ये दोनों के अंदर डिफरेंस है। एक पॉइंट और मेरे को याद आ रहा था आपको इंपॉर्टेंट बताने के लिए, कि जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को एक्सप्लेन करते हैं तब आपका वो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल ही है। यस, आई गोट द पॉइंट। मोटर की जब आप वर्किंग करते हैं तो उस मोटर की वर्किंग में कम्यूटेटर का या हाफ स्लिप रिंग्स का क्या रोल है, तो जब कंडक्टर आपका एक चक्कर पूरा कर लेते हैं तो उनकी स्लिप रिंग चेंज हो जाती है, जिससे उनके अंदर करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। करंट की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से जो कंडक्टर आपका एक साइड आता है उसके अंदर हमेशा टॉर्क एक ही डायरेक्शन में रहेगा और आपकी मोटर रोटेट करती है। इसके अलावा मूविंग सिस्टम के अंदर कंटिन्यूटी ऑफ सर्किट मेंटेन करने के लिए हमारे जो कम्यूटेटर हैं कार्बन ब्रशेस वो काम आते हैं। अर्थिंग का फंक्शन आपको पता होना चाहिए, फ्यूज का फंक्शन आपको पता होना चाहिए। फ्यूज हमारा किसी भी अप्लायंस के लिए हम करंट कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके लिए मैक्सिमम कितना है, उससे स्लाइटली ग्रेटर वैल्यू हमारी फ्यूज की होनी चाहिए। अर्थिंग का पर्पस होता है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की बॉडी में कोई भी करंट आ जाता है, कई बार वायरिंग शॉर्ट नहीं होती लेकिन एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से लीकेज करंट आ जाता है, तो वो बॉडी को अप्लायंस की बॉडी का पोटेंशियल जीरो रहे, अर्थ के पोटेंशियल के इक्वल रहे, अर्थ का पोटेंशियल हम जीरो लेते हैं, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम अर्थिंग कर देते हैं। ठीक है, तो विद दीज concepts which I have discussed you, I wish you all the best for your Monday exam, and I think your Monday exam is going to be your last practice exam before your term 1 exam. So prepare well, take care, like always. Thanks for watching, bye bye.